یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم، اور اس پروگرام میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھانے کا جو انداز مبارک تھا، تربیت کا انداز مبارک، اس کے بارے میں بھی سنا کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے علم دین آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے کئی انداز دنیا میں رائج ہیں جن کے ذریعے انسان اپنا معافی ضمیر کسی کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت ہر طبقہ و قوم میں مسلم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کر کے انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنانا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنا آسان طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے فائدے بھی اتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ مشکل اور مشکلات سے انسان عموماً بھاگتا ہے۔ تربیت کرنے والا سمجھنے سمجھانے کے لیے جتنا آسان انداز اختیار کرے گا اتنے فوائد زیادہ ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بہترین معلم ہیں۔ آپ نے ایک ان پڑھ قوم کی اتنی آسان اور شاندار انداز میں تربیت کی کہ مشکل سے مشکل مسئلہ ان کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جایا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا جو انداز ہمیں روایات میں ملتا ہے، اس میں ایک انداز مبارک یہ ہے کہ لائنیں کھینچ کر، خطوط کے ذریعے نقشہ جات بنا کر کسی کو کوئی بات سمجھانا، اور آج اس کو وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ یا پریزنٹیشن یا پریکٹیکل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس انداز کو اپنایا جاتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا کہ جسے آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک سکھانے کا، سمجھانے کا آسان انداز ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی انداز مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ جات کے ذریعے، لکیروں کے ذریعے کس طرح اپنے غلاموں کو سمجھایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بن کر دنیا میں تشریف لائے اور بچھڑوں کو، بھولوں کو حق سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان کے کچھ اشعار سوچ رہا ہوں کہ ماہ میلاد کی نسبت سے کچھ عرض کروں۔ ماشاءاللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، یہ بھولے بچھڑوں کو راستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں
शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा हादी मरहबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज, टीचिंग मेथड क्या था? जैसे आपने बताया कि लकीरों के ज़रिए से, खतूत के ज़रिए से, लाइनों के ज़रिए से समझाना, मिसाल देकर समझाना, आसान करके समझाना। इस ताल्लुक से अर्ज़ करता हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी जिन्हें कहा जाता है फ़क़ीह उम्मत, इस उम्मत के बहुत बड़े आलिम, और क्यों ना हो कि डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम से नमाज सीखी, कुरान सीखा और न जाने क्या क्या सीखा, और मुजतहिद के मकाम पर आप फाइज। सहाबा में जो मुजतहिद सहाबा हैं उनमें आपका नाम मुबारक। रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक लाइन खींची, लकीर खींची, फिर फरमाई अल्लाह पाक की राह। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस एक लाइन के राइट और लेफ्ट, दाएं बाएं लकीरें खींची, मुख्तलिफ लकीरें। फरमाया ये राहें हैं, इनमें से हर राह पर शैतान उस राह की तरफ बुला रहा है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। सीरत का ये पहलू भी बड़ा मज़ेदार है और बड़ा दिलनशीन है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा की तरबियत करते हुए कुरान पाक की आयात तिलावत फरमाया करते थे। तो हमारे टीचर्स, हमारे जो HODs और अब्बू, दादा साहब, नाना जान, चचा, मामू, बड़े भाई, जिनका ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ने दिया है कि वो एक टीच करते हैं, वो बताते हैं, वो समझाते हैं, हदीसें और कुरान की आयतें याद हों और उसकी तफसीर और शरह वगैरह भी सही हो और मौके की मुनासबत से हो, अल्लाह करे। तो ये सीखेंगे तो आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे हम भी जब समझाने का मौका आए, देख कैसी तालीम है जिसमें आयत ही नहीं पढ़ी हमने, भाई हदीस ही नहीं पढ़ी, किसी बुजुर्ग की बात ही नहीं की। हम बता रहे हैं कि फलां जो गैर मुस्लिम था उसकी थ्योरी ये है, उसका थेरम ये है, उसका आइडिया ये है, उसकी रिसर्च ये है। अरे भाई तू मुसलमान है, को अल्लाह का हुक्म भी सुनाएगा, कुरान में सारे उलूम है, को कुरान की बात भी करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो आलिम मा काना वमा यकून है, उनका कोई इरशाद भी तो बताएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत से भी तो कुछ बता ना। मुसलमान है ना, अल्लाह की बात करेंगे, रसूल की बात करेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनआम की आयत नंबर 153 का ये हिस्सा पढ़ा, वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और ये कि ये मेरा सीधा रास्ता है तो इस पर चलो और दूसरी राहों पर ना चलो, वरना वो राहें तुम्हें उस रास्ते से जुदा कर देंगी। हजरत अल्लामा मौलाना अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह के लाडले रसूल ने, सैयदुल अंबिया ने हमारी तालीम के लिए, हमें समझाने के लिए, इसके माना हमारे जहन में करीब लाने के लिए लाइन खींची। उलमा की शान देखिए उस्ताद साहब कि आका ने लाइन क्यों खींची, इसकी वजाहत भी कर रहे हैं। हर एक का काम तो नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि मिसाल माना समझाने के लिए बयान की जाती है और महसूस चीज के जरिए समझाना जहन में जल्द करार पकड़ता है। माशाअल्लाह। एक चीज को हम पहले से जानते हैं और एक अननोन है। अब वो जो जानते हैं चीज, लकीरें, लाइनें तो समझ में आती है ना, अब उसके जरिए से जो चीज नहीं जानते उस तक जहन की रसाई हो जाती है। ये समझें कि उस्ताद साहब तालिब इल्म की मदद कर रहे हैं कि वो आसानी के साथ समझ जाए। वैसे भी टीचिंग मेथड ऐसा हो कि स्टूडेंट को, तलबा को
چاہے وہ حفظ کرنے والے بچے ہیں، چاہے درس نظامی کرنے والے بچے ہیں، چاہے اسکول جائز تعلیم جو بھی حاصل کر رہے ہیں، ابو سے پڑھ رہے ہیں، امی سے پڑھ رہے ہیں، نانی سے پڑھ رہے ہیں، دادی سے پڑھ رہے ہیں، جس سے بھی پڑھ رہے ہیں، ہوم ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، کہ اس کو سمجھ میں آئے. اب یہ نہیں کہ میرا تو پیریڈ پورا ہو گیا، میں نے تو سمجھا دیا، میں نے تو کہہ دیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک، اور اس کے تحت اور بھی بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں کی، مگر ابھی استاد صاحب سے اور ظفر بھائی سے بھی ہم نے مدنی پھول لے لیں. بات کرنے کا اور سمجھانے والوں کا ایک انداز یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح یہ کتاب ہے، جی استاد صاحب نے کتاب کھولی ہوئی ہے اور پڑھا رہے ہیں، ٹیچر صاحب، پروفیسر صاحب، جو بھی صاحب ہوں، یا تو تیاری پوری نہیں ہوتی یا کوئی اس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ وہ سر کتاب کے اندر ہی ہے کہ نظر آگے پیچھے ہوئی تو لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو اب سامنے والوں کو سمجھ آئی نہیں آئی، یہ اپنے وہیں سر دے کے بیٹھا ہوا تو ہے. اسکول کے دور کا میں اپنا آپ کو واقعہ بتاؤں تھوڑا سا کچھ اس کے ساتھ. ہماری کلاس کے اندر ایک ٹیچر آتے تھے، وہ جو بتا رہے کم و بیش یہ ان کا انداز تھا. شرارتی بچے، شاید یہ 9th کی بات ہوگی، 1981 کی. بچے جو نا ان کو چاک کے پیس مارتے تھے، لیکن وہ سر اٹھاتے ہوں گے اور نالائق دیکھتے ہوں گے. غلط کرتے ہیں، مگر وہ ٹیچر صاحب بھی جو نا وہ لگے ہوئے اپنے اس میں بک کے اندر ہی، وہ بچے جو نا وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن استاد کا ٹیچنگ کا میتھڈ، اب سب کو اٹینشن کرنا ہے نا، سب کی توجہ لینی نا. جب تک آپ آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں نا اس کو، اب دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا آپ، میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تو آپ کو ایسا لگے میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، میں اب یوں بات کر رہا ہوں، بات آپ سے کرو، دیکھ ادھر رہا ہوں. اچھا میں یوں دیکھ، آپ اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتے، بلکہ باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی ہوگی کہ سر میں سن رہا ہوں، آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ورنہ تو یوں تھوڑا سا موڈ بنائے گا تو خود ہی اسٹوڈنٹ وہ متوجہ ہو جائے گا. وہ آپ نے جس عنوان کو لیا اسی پر میں کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا بھی چاہوں گا. اتنی ساری لکیریں استاد صاحب، یہ کیا بنا دیا آپ نے؟ آپ نے جو روایت ذکر کی ہے نا، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیان کردہ روایت آپ نے ذکر فرمائی ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچے اور مربع صورت بنائی. 4 لائنیں کھینچی اور ان میں سے ایک بڑی لائن جو کہ اس سے باہر نکلتی جا رہی تھی. ویسے رائٹنگ اچھی استاد صاحب کی، ماشاءاللہ. میں بھی ہی غور کر رہا ہوں. یہ بنائی مستطیل بھی اچھا بنایا ہے ویسے. جی. اور یہ بنانے کے بعد نا مختلف خط کھینچ دیے. یہ خط کھینچنے کے بعد ذکر فرمایا کہ یہ انسان خط، وہ لیٹر جو ہے وہ، یہ لکیریں بھی قوم کو پلے نہیں پڑتی، لائن پلے پڑتا ہے. اچھا، یہ لائنیں کھینچی اور لائنیں کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ انسان ہے. اور یہ جو لمبی لائن ہے جو زندگی سے بھی آگے نکل رہی ہے، یہ ہیں بندے کی امیدیں. یہ لکیریں کیا استاد صاحب؟ امیدیں اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں، اور یہ جو لائنیں ہیں بیچ میں، یہ اس کی زندگی میں آنے والے مختلف طرح کے ہرڈلز، رکاوٹیں، پریشانیاں، دشواریاں، بیماریاں، غم، تنگ دستیاں، کسی نے سنا دی، کسی نے ڈسٹرب کر دیا، کوئی پیسے کھا گیا، اور یوں مختلف طرح کے مصائب ذرا زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اس کی امیدیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ اپنی طرف سے 100 برس کا سامان کیے ہوئے، بڑی لمبی لمبی امیدیں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اس کے بعد یہ، تو اس کے بعد یہ، تو اس کے بعد یہ اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. جبکہ یہ مصیبتوں ہی کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے اور امیدیں پوری ہونے سے پہلے زندگی تمام ہو جاتی ہے. ظفر بھائی کی بھی کچھ وہ مثال آپ بتا رہے تھے نا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی گاڑی سمجھانے کے لیے، پھر اس کے پہلو میں ایک دوسری، تھوڑا دور کر کے ایک تیسری، پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اچھا ہم جیسا کوئی بیٹھا ہوتا تو جیسے آج بھی کوئی پوچھے ہم سے کہ یہ کیا ہے تو ہم تو ٹھک کر کے بولیں گے پین ہے، لکڑی ہے، چڑی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت طیبہ تھی کہ وہ ایک ہی جواب دیتے تھے، اللہ و رسول عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. اسی منن والے. ہاں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گاڑی ہے، یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے، یہ انسان ہے جو پہلی لکڑی جو پہلی قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ساتھ میں اس کے پہلو میں ہے یہ موت ہے، اور جو دور ہے وہ امیدیں ہیں. اللہ. اچھا راوی کہتے ہیں کہ وہ جو دور ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ آرزو ہے، یعنی اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ رہے، اپنا ایک تھاٹ، اپنا ایک خیال پیش کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں سرکار نے فرمایا یہ آرزویں ہیں. جی.
تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو پہلو میں موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اس کو چھوڑ کے تو لمبی لمبی امیدوں کی طرف دھیان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور موت وہ ان امیدوں کو پورا کرنے کے چکروں میں موت کسی بھی وقت اس کو آ لیتی ہے۔ تو اب یہ جو ایک طریقہ کار ہے سمجھانے کا، اس سے دو تین باتیں علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنی، ویسے تو ڈھیر ساری چیزیں جو سیکھنے کو یوں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے طلبہ کی توجہ کیسے لینی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی توجہ سرکار نے کیسے لی۔ ویسے تو صحابہ ہمہ وقت مصطفیٰ کریم تشریف فرماؤ توجہ ہٹ جائے پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا ان سے پیار کرتے تھے، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے یا معلم کی حیثیت سے ہماری تربیت کی کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، اب سوال کر کے سب کا فوکس اس سوال اور جواب علم جو دینا ہے اس کی طرف۔ تو اس کے بعد دوسری جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی، یعنی استاد ایک سوال کر کے توجہ حاصل کرے طلبہ کی، اور دوسری جو چیز ہمیں ملی کہ طالب علم کو بھی چاہیے کہ پوری فوکس کے ساتھ علم حاصل کرے، جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے توجہ کی۔ تیسری جو چیز، جس بات کے اندر ڈاؤٹ ہو کہ یہ استاد نے کہی ہے یا نہیں کہی، تو اس کو استاد کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کرے کہ میں نے تو استاد سے یہی پڑھا ہے۔ جیسے بعض اوقات ٹیسٹ لینے کے لیے آتے ہیں، طالب علم جواب غلط دے رہا ہوتا ہے اور دھڑلے سے یا برملا کہتا ہے کہ ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے، حالانکہ ٹیچر نے یہ نہیں پڑھایا ہوتا، بقیہ 2-4 اسٹوڈنٹ صحیح سنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی پڑھایا ہے۔ جب آپ کو ڈاؤٹ تھا تو آپ ڈاؤٹ کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں نہ کہ استاد کی طرف اس کو یقین دہانی کے ساتھ اس کو منسوب کریں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار افضل عورتوں کا بھی بیان کیا تو 4 لائنیں کھینچی اور فرمایا کہ پتہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ خدیجہ ہیں اور مریم ہیں اور آسیہ ہیں اور فاطمہ ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا اور 4 لائنیں کھینچ کر بتایا کہ یہ 4 عورتیں جو ہیں یہ افضل ہیں۔ تو آج بھی ان روایات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی سکھانے والا ہے وہ طلبہ کو آسان طریقے سے سمجھانے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا رہے۔ آج بھی کئی اساتذہ جو ہے وہ نقشہ جات کی صورت میں، اور اب کئی اس طرح بھی بڑھ رہے ہیں کہ پریزنٹیشنز کی صورت میں بھی سکھانے کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا انداز ہے جس میں سیکھنے والوں کو آسانی رہتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ استاد کو بھی چاہیے کہ نت نئے طریقے تلاش کر کے آئے کہ کون سا ایسا طریقہ میں لے کر جاؤں کہ جس سے طلبہ کے اندر جلدی سے سبق یاد ہو جائے اور وہ طلبہ کو جلدی سبق یاد کرنے میں مددگار بھی ثابت ہو۔ جیسے بورڈ کا استعمال ہے، جی یہ اگر کیا جائے تو اس سے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے طالب علم اگر ماضی میں دیں نا تو ان کا پڑھنے والوں کا اپنا ایک ذوق شوق تھا، اب ذوق شوق کم ہو گیا آنے والوں کا۔ اب بعض کسی کی خواہش پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اپنے ذوق پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض والد صاحب کی ڈیمانڈ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے خود ان کے اندر ذوق شوق پیدا کر کے علم دین دینا ہے۔ بصورت ثانی وہ ٹائم نہیں رہا جو پہلے علم حاصل کرنے کا ذوق شوق ہوتا تھا، تو اس کے لیے نئے طریقے لانے پڑیں گے، پھر ہی شاید سلسلہ اچھے سے ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام ماجد کریم اتاری ہے، میں ماڈل BS جامعۃ المدینہ فیضانیہ تاٹ ڈیفنس لاہور کی 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی اپنے جامعۃ المدینہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی ترقی کی سکلز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پہلے پڑھ تو لو، اللہ آپ کا بھلا کرے، درس نظامی تو پورا کر لو، اتنی جلدی بھی کیا، اس دوران آپ کریں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اپنی تعلیم کو فوکس کریں اور اللہ آپ کا بھلا کرے، علم عمل اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے، پھل موسم پر آتا ہے اور پھل آنے کے بعد پکتا بھی اپنے موسم پر ہے۔ اچھا، اس کو اس موسم کے اندر اگر استعمال کر لیا جائے تو فائدہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو کولڈ اسٹوریج کے ذریعے سیو بھی کر لیا جائے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اچھا، شیطان دینی طلباء سے شاید اس معاملے میں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، کیا ہوگا، مستقبل، فیوچر، شادی، تو گھر بار، یہ وہ۔
तो रख मौलात आस और आगे बढ़ें। दौरान तालिब इल्म मैं तो ये मशवरा दूंगा कि अपनी तालीम को फोकस किया जाए। और ये स्किल्स की बात कर रहे हैं, अगर इल्म दीन जैसे आप फरमा रहे अच्छे अंदाज से पढ़ें, इसी दौरान अपनी हिफ्ज़ है तो उसको मजबूत करें, किरात वगैरह के कोर्स या इल्म दीन से मुतल्लिका ही कई कोर्सेज होते हैं, उन स्किल्स को बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नियतें हों, सवाब भी मिलेगा, दूसरे फायदे भी हासिल होंगे। देखिए भाई अल्लाह आपका भला करे कि बास तलबा माली लिहाज से बहुत कमज़ोर होते हैं और हमारे अकाबरीन ने फाके करके तालीम हासिल की, मजदूरियाँ करके साथ तालीम। हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह का हमने पहले सिलसिलों में तज़किरा किया है ना, हमारे उलमा प्यारे उलमा भी सेगमेंट आने वाला है, उसमें हमने तज़किरा किया कि मजदूरियाँ करके तो हमारे तलबा जो हैं वो मौज़नी करके, इमामत करके, ट्यूशन पढ़ाकर, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। अब ख़ास ये सवाल के भी स्किल्स वो पैदा करने जा रहे हैं मुआशी की, वो अपनी मुआशियात अपनी इकोनॉमी को मजबूत अभी से फिक्र क्यों कर रहे हैं भाई? अभी आप तालीम को फोकस करें। हाँ, उसको असिस्ट करने वाले जो कोर्सेज हैं उसको करें, उसमें तो हर्ज नहीं भाई, वो तो फायदेमंद है। वैसे कुछ हजरात ना फरमाया करते थे, यक खानी यक शवी, दो खानी दो शवी, से खानी हेज न शवी। नहीं, एक फन की तरफ तवज्जो रखोगे तो यकता बनोगे, दो की तरफ तवज्जो रखोगे तो मुंतशिर हो जाओगे, तीन पर और तीन पर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हो जाएगी। ये भी नहीं वो भी नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे उलमा प्यारे उलमा। जी सैयदी, आज किन का जिक्र खैर होगा? आज हम तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम उस्ताजुल उलमा सिराजुल फुकाहा मौलाना सिराज अहमद खानपुरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी का। जरा कुछ आसान भी फरमा दें सिराजुल ताकि फुकाहा। आम नाज़रीन जो वो भी फायदा उठाएं। सिराज सूरज को कहा जाता है, ठीक है, और फुकाहा आम आवाम के एतबार से अगर बात करें तो बहुत बड़े उलमा, माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा में भी इनको सूरज का दर्जा हासिल है। बहुत नुमाया और बहुत बड़े अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इल्म फन में इन्हें उरूज अता फरमाया था, माशाअल्लाह, कमाल अता माशाअल्लाह, फरमाया था। माशाअल्लाह। और ये खानपुर हमारे जनूबी पंजाब का एक शहर है, वहाँ आप तशरीफ फरमा हुआ करते थे। 14 ज़ुल्हिज्जतुल हराम 1303 सने हिजरी आपका यौम विलादत है। कुछ शख्सियात इस तरह की हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि वो भी आलिम, उनके वालिद भी आलिम, उनके दादा भी आलिम, और बाद इस तरह के हैं कि ददहियाल की तरफ से देखें तो भी उलामा, ननिहाल की तरफ से देखें तो भी उलामा। सुभान अल्लाह। तो इनके नाना जान मौलाना इमाम बख्श ये भी आलिम है, इनके वालिद मोहतरम है मौलाना अहमद यार, ये भी आलिम है, क्या बात। और इनके दादा जान है मौलाना मोहम्मद आलिम, नाम भी आलिम है भी आलिम, और साहिब फतवा भी थे, साहिब तकवा भी थे। माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह। तो ये ननहियाल और ददहियाल दोनों के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अमल का एक चमकता हुआ सूरज थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम मुबारक सिराज अहमद है हजरत का रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी इब्तिदाई तालीम के ताल्लुक से भी कुछ इरशाद हो। इब्तिदाई तालीम तो हजरत ने अपने गांव में ही हासिल की, फिर चाचड़ा शरीफ के मशहूर मदरसे जामिया फरीदिया में, फिर इब्तिदाई दरस निज़ामी करते हैं, फिर इल्म हदीस की तरफ भावलपुर आकर, और फिर जब फारिग तहसील होते हैं तो तलबा में आपका नुमाया एक मकाम रहा। वो दौरे तालिब इल्मी में ही आप मुमताज़ नजर आते। आप तीनों माशाल्लाह असातिज़ा किराम हैं, वो तलबा में नजर आ जाता है ना, नुमाया जो होते हैं। अक्सर दरसी कुतुब वगैरह जो हैं ये इन्होंने माशाल्लाह इसका मुताला बहुत करते थे और बहुत काबिल और सलाहियत वाले थे। फिक की एक किताब कंजुल दकाइक इन्होंने सबकन पढ़ी, और बकिया ये ज़ाती मुताले के ज़रिए से काम चला लेते थे। और बहुत सारे फ़नून पर मुश्तमिल किताबें आपने फिर तलबा को पढ़ाना भी शुरू की, और सुभान अल्लाह इनकी इस्तिकामत और इनकी बरकत और तरक्की देखिए। इन्होंने 70 साल तदरीस की, 70 साल, सुभान अल्लाह, तकरीबन पौन सदी। क्या बात है, पौन सदी तक इल्म दीन पढ़ाते रहे। इनका मकाम और मर्तबा क्या, सुभान अल्लाह, अल्लाह की इन पर करोड़ रहमतें। फैज़ मिल्लत मौलाना फैज़ अहमद ओवैसी साहिब ये इनके शागिर्दों में। क्या बात है। सिराजुल फुकाहा ना सिर्फ मुदर्रिस थे बल्कि
मुफ्ती इफ्ता जब आप फतवा जारी फरमाते तो तबाहुर इल्मी ऐसा होता कि आपके तवाहुरुल फतवे इल्मी ये क्या होता है उस्ताद? इल्म का बहरे बेकरां समुंदर, बहर क्या होता है? समुंदर, अच्छा, सी। आप इल्म के समुंदर ऐसे थे कि जब आप फतवा तहरीर फरमाते तो उसके बाद बस होती थी। क्या बात। और कलम तोड़ देना जिसको कहते हैं जी, ना, जी। क्या मजीद गुंजाइश मिरास, नहीं। वसीयत, मिकात और रियाजी पर तो आपकी नज़ीर ही नहीं है। अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि मैंने आपकी वो कुतुब जिनके अंदर आपने पढ़ा था बनफ्स नफीस, जब उन कुतुब को देखा तो जगह ब जगह आपने हवाशी लिखे हुए हैं, जगह ब जगह आपने तहरीर लिखी हुई है अपनी, जगह ब जगह नोट लिखे हुए हैं, और जो आपने तहरीरें लिखी हुई हैं उसका भी कोई मिसाल और कोई क्या सानी बात नहीं है, है। क्या बात। और आला हजरत से ताल्लुक भी बड़ा गहरा। अच्छा, हाँ जी, यानी सरकार आला हजरत के दौरे मुबारक से लेकर जब तक आप हयात रहे हैं, जो अहले सुन्नत व जमात के उलमा हैं उन्होंने आपसे इक्तसाब फैज़ ही की है। क्या बात। मिरास पर महारत के बावजूद आपने मिरास का मसला सरकार आला हजरत की तरफ रुजू किया एक मसले के मामले में, और वो फतावा रज़विया जिल्द 26 में तिफ्ताह ज़ियारत बाब कराएं में है। नाज़रीन। इसमें एक चीज़ मजीद ये भी है कि हजरत का लक़ब जिस तरह अभी अर्ज़ किया गया कि सिराजुल फुक़हा, सिराजुल फुक़हा भी रुजू कर रहे हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में। क्या बड़े बड़े उलमा मेरे रजा से वो मुतालिक रहते थे और पूछते थे। बेशक। तो जिस तरह हमारा एक मौजू चल रहा था इशारात, नक्शे, अच्छा, जिल्द भी खत, वही जिसके अंदर लकीरें। वो इनका जी जी मौलाना सिराज अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो सवाल किया था, हमारा जो पहला सेगमेंट था ना हाँ जी, और इशारात मज़ीद उस पे वगैरह आप के बता ताल्लुक रहे से, हैं। तो इल्म मिरास में अमूमन ये चीज़ होती भी है। ये फतावा रज़विया की एक जिल्द है, जिल्द नंबर 26। नाजरीन देखेंगे कि ये एक सफ़ा आपके सामने है, मिरास के मसले को भी बाकायदा से नक्शा बना के, ख़त बना के इस अंदाज में समझाने की सूरत की गई है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी अदा, उसको हमारे उलमा भी अदा करते हैं। आपके फतावा जात सैकड़ों पर मुश्तमिल हैं, जिसे सिराजुल फतावा के नाम से उसको जमा किया जा चुका है। सुभान अल्लाह, आप मुदर्रिस भी थे, मुफ्ती भी थे, और फैज़ अहमद वैसी साहब जैसी शख्सियात और बड़े बड़े उलमा आपके शागिर्दों में हैं। किताबें भी आपने तहरीर फरमाई, सिराजु अहलिल क़िबला ये आपने तहरीर फरमाई, अज़्ज़ुब्दतुस सिराजिया फ़ी इल्मिल मिकात वल मीरास वल वसिया, और सिराजुल फतावा वगैरह आपकी तसानीफ है। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो। आमीन। 5 ज़िक़अदतिल हराम 1392 सिने हिजरी में आपने विसाल फरमाया। अल्लाह पाक इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली अत्तारी बिन मोहम्मद अशरफ है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात के दर्जा दौरातुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। मेरा निगरान पाकिस्तान की बारगाह में यह सवाल अर्ज़ है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के इस शेर का मतलब बयान फरमा दीजिए कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह व ज़ुफ़र की है। यानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो सफ़र करने लगा हूँ कि जिस पर फलाह यानी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ वो भी उस पर निसार हों। सुभान कि जा कहाँ रहे हैं? कहा बारगाह रिसालत मदीना। मदीने सफ़र जा रहे अच्छा, हैं। मदीने जाने सफ़र के हो और फिर ये शेर पढ़ते हुए जाए। आए है क्या बात। वो पढ़ते हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ जो काफिला जाता है, और आशिकान रसूल पढ़ते हैं, और वाकई आला हजरत के ये कलाम जो है ना पूरा ये पढ़ते जाएं, ऐसा ज़ोक, ऐसा मजा आता है कि मजे सफ़र में मजा मदीना आता है। नसीब हो और अमीर अहले सुन्नत का साथ हो, तो क्या आप कैसे बात। पढ़ते हुए जाएंगे? अगर पढ़ के भी सुना दें तो। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत का पैगाम आपके नाम। हमारे जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो हम अपने असातिज़े किराम और अपने वालिदैन और मज़ारत औलिया पर भी जाके दुआ करते हैं।
तो क्या हमें आखिरत के इम्तिहान के लिए भी अपने असातिज़ा किराम और अपने माँ बाप और मज़ारात औलिया पर जब हम जाएं तो उसे किस तरह दुआ करनी चाहिए? ये तो है कि वो तो पहले ही मैंने कहा ना कि इस दुनिया में जो इम्तिहान आते हैं इसका बड़ा इम्प्रेशन होता है हम पर और एक रौब होता है। ये इसके लिए भाग दौड़ तैयारियां, फिर दम दुरूद, दुआ, तावीज़, औराद, लेकिन आखिरत के इम्तिहान के लिए फिर अब वो बात नहीं है। तो वाकई इसके लिए भी दुआएं करवानी चाहिए। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह तो मग़फ़िरत की दुआ करवाते थे। मलफूजात में आपने अगर पढ़ा हो कि एक मजसूब के पास तशरीफ ले गए तो मजसूब ने कहा तुम फलां काम के लिए आए हो? तो बोला नहीं, मैं तो हुजूर बस सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ करवाने आया हूँ। इसी तरह मिना शरीफ की मशहूर मस्जिद खैफ, बहुत कदीम मस्जिद है। अब तो खैर वो इसकी काफी तोसी हो गई है, जदीद है, वरना वहाँ इतनी कदीम है ये कि उसमें 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अब तो कुछ अलामत कुछ भी नहीं है मजार की, सब फर्श है, नमाजें होती है। तो उस मस्जिद में आप तशरीफ ले गए तो उस वक्त कोई ऐसा वक्त था कि नमाजों का वक्त नहीं था, कोई भी नहीं था वहां। तो एक साहब थे, वो पहली सफ में सर झुकाकर मुराकिब थे। उस शहद की मक्खियों की बिन बिनाट किसी आवाज आ रही थी तो आला हज़रत को वो हदीस शरीफ याद आ गई, अहलुल्लाह जब अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम जिक्र करते हैं तो इनके सीनों से ऐसी आवाज बुलंद होती है, शहद की मक्खियों की बिन बिनाट किसी। तो आप दबे कदम उसकी तरफ बढ़े कि मैं मग़फ़िरत की दुआ करवाऊंगा। तो उन्होंने खुद ही हाथ उठा दिए और मग़फ़िरत की दुआ इनके लिए कर दी और मतलब पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। अहलुल्लाह से पता चल गया तो हालात भी समझदार थे, वली रवली मीशनासत, वली वली को पहचानता है, समझ गया कि इनको मेरा मकसद पता चल गया। मैं दुआ कराने के गया था मग़फ़िरत की, तो इन्होंने मैंने दुआ कर दी, अब जाओ, ये इशारा समझे इसका। तो आप फिर पलट गए, मिले बगैर उससे। वो दुआ मग़फ़िरत को आला हज़रत बड़ी तरजीह देते थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा लगे कि इसकी दुआ कबूल हो जाएगी तो हम आमतौर पे मग़फ़िरत की दुआ का बोलेंगे तो मरी हुई दादी के लिए, फौत शुदा अपने अजीजों के लिए, अपने रोजी में बरकत, इम्तिहान में पास हो जाऊं, नौकरी लग जाए, फलां हो जाए, ये होता है हमारे लिए, हमारे यहाँ। हालांकि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना दुआए तो जनाजे की जो दुआ है उसमें या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, ये पहले है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की। तो मुर्दों का नंबर बाद में है, लेकिन इस वक्त ये मैं कई बार बयान करता हूँ, लेकिन बस वो इन्हें इतना ये आम है कि सिर्फ मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करके कभी कोई कहता भी है ना कि मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, तो मैं समझ में यही आता है कि इनके वालिद फौत हो गए। फिर बाद बात सराहत भी हो जाती है कि वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें, अम्मी बीमार है इनके लिए सेहत की दुआ कर दें, और सराहत नहीं तो मजीद यानी कि वो मजबूत हो जाता है कि ये वालिद फौत हो गए। पता भी चल जाता है बाज़ बातों से। तो हालांकि जिंदों को भी मग़फ़िरत की दुआ की हाजत है, हम सभी को हाजत है। ये सवाल चलाइए। मेरा नाम दानियल इमरान अत्तारी है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना सियालकोट के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा हाजी शाहिद साहब की बारगाह में सवाल ये है कि तंजीमी अपडेट का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, तंजीमी तौर पर दावत इस्लामी लम्हा ब लम्हा तरक्की करती चली जा रही है। जामिअतुल मदीना गर्ल्स बॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं, मदरसतुल मदीना गर्ल्स बॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान बालिगात ये बढ़ते जा रहे हैं, इज्तिमात उनकी तादाद, रूहानी इलाज के अच्छा वो शहरों के निगरान मुख्तलिफ ये चीज़ें तरक्की करती चली जा रही हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दावत इस्लामी सेकंड नहीं, आधे सेकंड के लिए बैक नहीं हुई, पीछे नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे शोबों में दावत इस्लामी काम कर रही है। अच्छा, जब हमें पता नहीं
کہ दावत इस्लामी क्या क्या काम कर रही है, किन शोबों में काम कर रही है, उस शोबे की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, किस किस सतह पर जिम्मेदार बनाए जाते हैं। तो उस शोबे के मुतालिक हमसे कोई पूछता है और हमें जवाब ही नहीं आता, वो कहते जी आप जो है ना लेडीज में काम करें, लेडीज में फिर दिन को ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, आपको तो पता ही नहीं कि 10,000 से ज्यादा इज्तिमात होते हैं पाकिस्तान में। आप उसकी बात सुनकर आ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, लेडीज आमतौर पे लोग कहते हैं ना भाई, इस लिहाज से मैं कह रहा था कि इस्लामी बहनों में काम करें। जब आप अपडेट ही नहीं है भी 10,000 इज्तिमात हो रहे हैं, इसको कहेंगे भाई 10,000 इज्तिमात हो रहे हैं, हम दिखाते नहीं, अलग बात है, शरीयत की तरफ से पाबंदी है और उसको हम दिलो जान से मानते हैं, जानते और अमल करते हैं। अभी जैसे कोई ये कहे कि हालिया सैलाब आया तो दावत इस्लामी ने क्या किया, असल में हमें पता नहीं क्या अच्छा, किया या दावत इस्लामी को कुछ करना चाहिए था, यूं कह के और सुन के आ गए भाई। तो तंजीमी अपडेट का बाकायदा हमने डिपार्टमेंट बनाया पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस में, एक जिम्मेदार मुकर्रर किया और वक्तन फवक्तन उसकी तरकीब करते हैं। और दावत इस्लामी का अल-मदीनतुल इल्मिया का एक ज़िली शोबा है शब व रोज़, उसकी तरफ से न्यूज़ लेटर पर भी ये खबरें जारी करने की तरकीब बनी है। तो इसके ये फ़वाइद होते हैं। अच्छा, हिंद का सफ़र था उस्ताद साहब और मुफ्ती दावत इस्लामी निगरान शूरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस सफ़र में था, ग़ालिबन 2004 के लगभग की ये बात थी। तो कानपुर में हम पहुँचे तो वहाँ के मुफ्ती बदर आलम और दीगर वहाँ के जो बड़े बड़े उलमा थे, अल्लाह इनके अमल में बरकत दे, वो तशरीफ़ लाए और निगरान शूरा ने मुझे तलब फरमाया, मैं किसी और मकाम पर था, वहाँ हाजिर हुए। वो कह रहे थे कि आप जो है ना जेलों में काम करें, वो कैद हो जाते हैं वहाँ पर काम करें, आप मसाजिद तामीर करें, उम्मत की इस तरह वो इस्लाह करें, उम्मत को फ़ायदा पहुँचाएँ। कहा हज़रत हम जेलों में ये काम कर रहे हैं, हम ये मसाजिद बना रहे हैं, इतनी हज़ार मसाजिद बना रहे हैं। जब बताया तो खुश हुए और फिर थोड़ा मोहब्बत भरा उन्होंने नाराज़गी का अंदाज़ अपनाया कि आप हमें बताते क्यों नहीं, आप हमें अपडेट क्यों नहीं करते। तो भाई अपने वालिद साहब को, अपने ख़ानदान में, अपने उस्ताद साहब को, अपने मदरसे के अंदर आप सबको तंजीमी जिम्मेदार अपडेट करें, वरना वो काम हो रहे हैं और हम समझ रहे नहीं हो रहे। हम अपडेट जो नहीं है ना, अपडेट होने के लिए मैं आपको नुस्खे बताऊं, सुन लें, समझ लें, अमल करें। मदनी खबरें रोज देखा करें, 2 टाइम चलती हैं मदनी चैनल पर, इससे आपको अपडेट मिलेगी कहाँ नया जामिया शुरू हुआ, कहाँ नया इज्तिमा शुरू हुआ, कहाँ निगरान शूरा का जदवल था, अमीर अहले सुन्नत ने किस किस की किस तरह तरबियत की, जानशीन अमीर अहले सुन्नत किन ममालिक में गए, कहाँ गए, क्या आपने फरमाया, अरकान शूरा के जदवल और वहाँ के तरक्याती काम आपको पता चलेंगे। अच्छा, माहनामा फैज़ान मदीना आपका मामिन मददगार है तंजीमी अपडेट के लिए। और अपने निगरानों के साथ मरबूत रहें, राब्ते में आएँ, तंजीमी जिम्मेदारी लें, मदरी मशवरे में शिरकत करें, यूं भी आप अपडेट होंगे। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत करें और जागते में शिरकत करें, तवज्जो के साथ शिरकत करें, मोबाइल को जेब में डालकर ऑफ करके या कम से कम साइलेंट पे लाकर शिरकत करें। तो वहाँ जो ऐलानात होते हैं ना, ये आपको अपडेट करेंगे कि दावत इस्लामी क्या कर रही है और मजीद क्या करने जा रही है। मदनी मुज़ाकरा, मदनी जज़ाकल्लाह, बिल्कुल मदनी मुज़ाकरा भी वीकली जबरदस्त अपडेट होने का एक जबरदस्त जरिया है। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमाया जामियातुल मदीना। मेरा नाम सुल्तान महमूद अत्तारी है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना जेहलम में नाज़िम जामिया की खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामिया में 182 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें अक्सर तलबा गैर रैशी और कुछ तलबा रैशी भी हैं। अब तक इस जामिया से 100 से ज़ायद तलबा कराम इल्म दीन हासिल करके फ़ारिग हो चुके हैं और बहुत से दावत इस्लामी के शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कुछ इस्लामी भाई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हैं, कुछ जामियातुल मदीना में मुदर्रिस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया की एक ख़ुसूसियत भी है कि इस जामियातुल मदीना के फ़ारुग व तहसील इस्लामी भाई इल्म दीन हासिल करके शरीयत के दायरे में रहते हुए अपना ज़ाती कारोबार भी कर रहे हैं। इसी तरह इस जामियातुल मदीना के फ़ारुग व तहसील इस्लामी भाई गवर्नमेंट में भी जाकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामियातुल मदीना के, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 182 तलबा हैं और इन 182 तलबा के माहाना अखराजात हैं तकरीबन 15 लाख के करीब हैं। हम इन तलबा को जो यहाँ जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलियात मुहैया करते हैं। यहाँ जामिअतुल मदीना में अगर बिजली वगैरह की सहूलत ना हो तो उसके मुतबादिल सोलर या जनरेटर की सहूलत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिअतुल मदीना की एक नुमायाँ खसूसियत या बरकत ये भी है कि इस जामिअतुल मदीना के करीब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया अवाइल के अंदर जब जेहलम के अंदर नेकी की दावत के लिए तशरीफ़ लाए, अब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया एक मस्जिद में ठहरे हुए थे। आपको अपने कपड़े धोने की हाजत पेश आई तो लोगों ने कहा कि आप मस्जिद में ही अपने कपड़े धो लें। आपने तकवे के पेश नज़र मस्जिद के बजाय यहाँ करीब ही दरिया जेहलम है, इसका पानी यहाँ पहुँचता था जहाँ जामिअतुल मदीना कायम है, यहाँ करीब आकर अपने कपड़े अपने हाथों से आपने धोए। अमीर अहले सुन्नत के कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर जहाँ अमीर अहले सुन्नत के कदम लगे हैं अज़ीम शान जामिअतुल मदीना कायम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी में रह कर शरीयत के उसूलों के मुताबिक हमें दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सवाल भी सुन लीजिए। हिंद के सफ़र में निगरान शूरा ने किस आलिम दीन को तंजीमी अपडेट्स दी? इनका नाम बताना है। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर आपने रिप्लाई करना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं, अपना फीडबैक भी दीजिए, प्रोग्राम से मुतल्लिक आप मशवरे भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम जो इस्लामी में दुरुस्त जवाब देंगे, कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी के ज़रिए जिनका नाम निकलेगा उन्हें तोहफ़तन 12 माह के लिए माहनामा फैज़ान मदीना पेश किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ हमने आज सुना इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म